Good morning all of you. Today we will discuss method of finding the resultant force in engineering mechanics. In this lecture I will discuss parallelogram law of forces. So friends, when a number of concurrent forces act on a body to keep the body in equilibrium, then resultant of these forces will be the vector sum of all these forces. So, first of all, what is the concurrent force? All forces lie in the same plane having different directions, but their lines of action act at a point, means pass through a single point. The point where the lines of action of the forces meet is known as the point of concurrency of the force system. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि द फोर्सेज P1, P2, P3 and P4 act and meet at the common point O in the same plane and constitute a system of coplanar concurrent force. For examples, forces on a rod resting against a wall as the best example of coplanar concurrent forces. So, when a number of concurrent forces act on a body to keep the body in equilibrium, then resultant of these forces will be the vector sum of all these forces. That means vector sum क्या होगा, इसको हम पहले देख लेते हैं. मान लिया कि मेरे पास कोई वेक्टर A है एंड दूसरा वेक्टर B है, तो इसका हम समेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. फ्रेंड्स, वी नो दैट वेक्टर सम में क्या होता है कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखा जाता है. अब यहाँ देख सकते हो कि वेक्टर ए का टेल जो है ये मेरा ये पॉइंट है और वेक्टर ए का जो हेड है वो ये पॉइंट है. दैट मीन्स वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रखा गया है एंड वेक्टर पहले वाले वेक्टर को के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को अगर हम मिला देते हैं तो ये मेरा रिजल्टेंट देता है. दैट मीन्स ए एंड बी को हम लोग ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट मेरा ए प्लस बी देता है और इसका जो डायरेक्शन होगा वो किसकी तरफ होगा, वो टेल से हेड की तरफ होगा. दैट मीन्स पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की ओर इसका डायरेक्शन होगा. नाउ अगर हम सिमिलरली इसी तरह से दो वेक्टर को अगर हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, पहला वेक्टर मेरे पास A है एंड दूसरा वेक्टर मेरे पास B है, या कह सकते हैं कि माइनस B है. अगर B रहता तो उसको उस डायरेक्शन को हम क्या करते, पलट देते, तो क्या होता वो मेरा माइनस B. दैट मीन्स अगर ये डायरेक्शंस मेरा अगर B है तो ये डायरेक्शन मेरा क्या हो गया, माइनस B हो गया. सो अगर दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड करना चाहते हैं या कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, पहले वाले वेक्टर मैंने यहाँ पे B लिया, इसके हेड पे इसके टेल को मीन्स वेक्टर A के टेल को यहाँ पे रख दिया. सो रिजल्टेंट मेरा फाइंड आउट हो गया A माइनस B और रिजल्ट का डायरेक्शन क्या होगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की ओर, मीन्स ये मेरा रिजल्टेंट हो गया. मीन्स ये रिजल्टेंट यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया. सो इस तरह से हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ सो द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज. Also from a given force, two forces in two directions can be obtained which will produce the same effect as produced by single given force. This process is known as dissolution of a force. Friends, composition of forces and dissolution of forces को आप मेरे पहले की वीडियो में भी देख सकते हैं. So now, what is parallelogram law of forces? This method is useful for finding the resultant only two concurrent forces. ये जो है वो दो concurrent force के रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का मेथड है. एंड
The parallelogram law of force is used to determine the resultant of two forces acting at a point in a plane and inclined to each other at an angle. आप देख सकते हैं कि टू फोर्स जो है मेरा F1 एंड F2 वो क्या है, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है किसी प्लेन में और ये दूसरे से इंक्लाइंड है एंगल थीटा पर. सो the parallelogram law of force is used to determine the resultant of two forces acting at a point in the plane and inclined to each other at an angle theta. So, what is the statement of parallelogram law of forces? So, इसका statement क्या है हम उसको देख लेते हैं. It states that if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, their resultant may be represented in magnitude and directions by the diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection. That means अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे बाय फिगर से कि लेट two forces F1 and F2 acting simultaneously on a particle, मान लिया कि पॉइंट A पे ये दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, be represented in magnitude and directions. यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिया है, A के फॉर्म में लिया है एंड ऑल्सो डायरेक्शंस को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है by the adjacent sides AB and AC of parallelogram ABCD. As shown in figure, the resultant R will be represented in magnitude and directions by the diagonal AD of the parallelogram. और यहाँ पे मैंने दोनों का रिजल्टेंट R इक्वल टू A प्लस B यहाँ पे शो किया है. So the value of R can be determined either graphically or analytically. So let us explain calculation of R. यहाँ पे हम लोग R का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे. So for this the value of R can be determined either graphically or analytically. So मैं यहाँ पे आपको एनालिटिकली बता रही हूँ कि किस तरह से हम लोग R का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. So let us drop in parallelogram ABCD DE to AB produced. मैंने यहाँ पे D परपेंडिकुलर AB के बढ़ाए हुए भाग पे यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया. So from the figure consider the right angle triangle BED. So यहाँ पे D का वैल्यू मीन्स जो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा BD साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा जो एंगल बना रहा है वो B साइड से बना रहा है, तो G साइड से एंगल बना रहा है वो क्या हो जाएगा B cos थीटा एंड इसका परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगा मेरा B साइन थीटा. दैट्स वाई मेरा D क्या हो जाएगा B साइन थीटा एंड B क्या हो जाएगा मेरा B cos थीटा. सो बाय कंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे B एंड D का वैल्यू फाइंड आउट किया. Now, in right angle triangle ADE हम देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में AD एंड E में कि AD स्क्वायर इक्वल टू क्या है होगा AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो मैंने यहाँ पे दिखाया AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड AE इक्वल टू क्या हो जाएगा AB प्लस B. सो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया. A इक्वल टू क्या होगा AB प्लस B का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर. AD जो मेरा है वो कितना है R है, सो R स्क्वायर एंड AB जो मेरा है वो A है एंड B का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है B cos थीटा एंड D का वैल्यू कितना है B sin थीटा. सो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर. सो इसको हम लोग
तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सो इस तरह से मैंने वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और मैंने ऑब्टेन क्या किया, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट r का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नाउ अगर हम यहाँ से अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, मीन्स अगर हम लोग एंगल बिटवीन क्या निकालना चाहते हैं, DAE, दैट मीन्स रिजल्टेंट जो मेरा अगर F1 के साथ या कह सकते A के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से किस तरह से फाइंड करेंगे। फ्रॉम फिगर हम देख सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, D डिवाइडेड AE, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। सो D डिवाइडेड AE, यहाँ पे आप देख सकते हो D डिवाइडेड AE, एंड D का वैल्यू कितना है, B साइन थीटा। सो B साइन थीटा मैंने पुट कर दिया, एंड A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस B, दैट मीन्स A प्लस B कॉस थीटा। सो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, A प्लस B कॉस थीटा। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, tan इनवर्स B साइन थीटा डिवाइडेड A प्लस B कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच एंगल कितना है, थीटा है, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फोर्स F1, या कह सकते हैं कि A, R एंड A के बीच का ये एंगल है। सो यहाँ से मैंने अल्फा को फाइंड आउट कर लिया। अगर मेरा अल्फा जो है वो रिजल्टेंट और B के बीच का एंगल होता, मीन्स मेरा AC साइड जो होता वो A होता और AB साइड जो होता वो क्या होता, B होता, मीन्स अल्फा जो एंगल होता वो R एंड B के बीच में होता, तो अल्फा का वैल्यू उस केस में क्या हो जाता, A साइन थीटा, दैट मीन्स A साइन थीटा डिवाइडेड B प्लस A कॉस थीटा। ये वैल्यू जब मेरा R और B के बीच का एंगल अल्फा हो तो उस केस में ये वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होता। सो इसको रिमेम्बर करने का एक ट्रिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसके साथ रिजल्टेंट मेरा एंगल बनाता है वो मेरा जो है वो नीचे में, जैसे मैंने यहाँ पे A के साथ एंगल बनाया था तो ये नीचे में A प्लस B कॉस थीटा होता है, और जब B के साथ बनाएगा तो B प्लस A कॉस थीटा होता है। एंड सिमिलरली जो A अगर नीचे है तो B ऊपर में हो जाएगा, एंड B नीचे है तो A ऊपर में हो जाएगा। इस तरह से आप इसको ट्रिक द्वारा भी रिमेम्बर कर सकते हो कि क्या होगा। नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर हम इस रिजल्टेंट में थीटा का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, हम यहाँ पे देखते हैं। मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 0 डिग्री, एंड कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, दैट मीन्स R इज इक्वल टू A प्लस B। हेंस द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम when the forces are collinear and act in the same directions। जैसा कि मैंने यहाँ फिगर में दिखाया है, यहाँ पर रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा जब ये कोलिनियर होगा एंड वो सेम डायरेक्शंस में एक्ट करेगा। मीन्स A एंड B दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। मीन्स अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा उस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट मेरा मैक्सिमम होगा। एंड व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो उस केस में क्या होगा, मीन्स अगर दोनों के बीच का, दोनों फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट मेरा क्या होगा, उसको यहाँ से देखते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 90 डिग्री, एंड कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 0, दैट्स वाई R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स B डिवाइडेड A, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू अगर 90 पुट किया तो क्या हो जाएगा, साइन 90 क्या होता है मेरा 1 एंड कॉस 90 क्या होता है 0, दैट्स वाई B डिवाइडेड A।
सो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b डिवाइडेड a. नाउ इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इस केस में क्या होगा, वी नो दैट cos 180 इक्वल टू क्या होता है, -1. दैट्स वाई r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री. सो यह वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो मेरा वैल्यू जो आया है वो कितना आया है, r इक्वल टू a माइनस b. Hence the resultant is minimum when the two forces are collinear but act in opposite directions. So if theta is equal to 180 डिग्री होगा तो मेरा रिजल्टेंट जो होगा वो मिनिमम होगा. कब होगा मिनिमम, जब मेरा फोर्सेज कोलिनियर होगा एंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा होगा. जैसा कि मैंने बाय फिगर यहाँ पे दिखाया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एंड दोनों क्या है, कोलिनियर है. इस केस में रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा, मेरा मिनिमम होगा. नाउ व्हेन ए इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स दोनों वेक्टर जो मेरा है वो इक्वल होगा, उस केस में क्या होगा. सो जब हम वैल्यू पुट करते हैं, let us consider a equal to b equal to a. So a square plus a square equal to 2a into a cos theta. मैंने r का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दिया है. r का वैल्यू मेरे पास क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा. यहाँ से वैल्यू मैंने पुट किया तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos थीटा. And we know that 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. That's why 2a square into 2 into cos square theta by 2. So यहाँ से अंडर रूट हट गया तो क्या आ गया, r is equal to 2a cos theta by 2. So इस तरह से मैंने आपको डिफरेंट केसेस को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में स्टडी करके बताया. नाउ अगर हम अल्फा का वैल्यू इस केस में देखना चाहते हैं तो क्या होगा, वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड a प्लस b cos थीटा. अगर a इक्वल टू b हो जाएगा तो उससे मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, a sin थीटा डिवाइडेड a प्लस a cos थीटा. a मेरा दोनों में कॉमन आया, सो दैट्स वाई कैंसिल आउट. सो tan इनवर्स इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड 1 प्लस cos थीटा. एंड वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 from the mathematics. And 1 plus cos theta क्या होता है, 2 cos square theta by 2 from trigonometric. Now tan inverse is equal to क्या आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया एंड sin theta by 2 cos theta by 2 शेष रह गया जो क्या होता है tan theta by 2. That's why alpha is equal to क्या आ गया, theta by 2. That is the resultant bisects the angle between the forces. Means इस केस में जो मेरा रिजल्टेंट जो होगा वो क्या करेगा, दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देगा. मीन्स अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड 2. सो इस तरह से मैंने आपको रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाया डिफरेंट केसेस के लिए. सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को मैंने यहाँ पे डिटेल्स एक्सप्लेन किया. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. सो वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.